बड़ा जिस उम्मीद के साथ लोगों ने इसको जिताया था ना, उस उम्मीद से तो बहुत ही कोसों दूर है। भाई कुछ नहीं करे ना, तो ये पंजाबी है कि ये करने के करे बता, तो करे बता। सर एक बार वोट मांगने आए तब हमने संजय भाटिया जी को देखा था, उसके बाद तो इतना टाइम चला गया, उसने मुड़ के जनता की तरफ नहीं देखा। हाँ, कई कॉलोनियाँ कटी हैं, कई नए मॉल खरीदे गए हैं, कई प्रॉपर्टीज के सौदे हुए हैं। फाइल देते थे, पैसे साथ में देते थे, दलाल घूमते थे, दलाल ढूंढते थे। आज आप ऑनलाइन घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराएं। इस तरह की लगभग 200-250 व्यवस्थाएं जो आप ऑनलाइन केवल एक क्लिक के माध्यम से उनका फायदा ले सकते हैं। लोगों में समझे ना क्या चर्चा, दाना पानी में क्या हो रहा है, ये कॉलोनियाँ कटी हैं, ये मिलजुल के जो काम हो रहा है, क्या से हो रहा है, सबको पता है। इस तरह के अनेक काम है जो हरियाणा ने किया। सम्मान जो है हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में बढ़ा है, तो मोदी जी का करिश्मा है। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ। ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਨ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਅਸਤਿਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1785 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਾਠਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। 1795 ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰਜ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾੜਵਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 1805 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਰਨਾਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੁੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁਆਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਪਰੀ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕਲੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਬਰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਨਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਗਿਆਸ-ਉਦ-ਦੀਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬੋਅਲੀ ਕਲੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਤਾਮਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਰਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਨੀਲੋਖੇੜੀ, ਇੰਦਰੀ, ਕਰਨਾਲ, ਕਰੌਂਡਾ, ਅਸੰਧ, ਪਾਣੀਪਤ ਸਿਟੀ, ਇਸਰਾਨਾ, ਸਮਾਲਖਾ। ਕਰਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 12,98,026 ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ 7,06,599 ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ 5,91,424 ਨੇ। ਜਦਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਤਿਆਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਦਰਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ 1967 ਤੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਧੋ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਤਾਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 4 ਵਾਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ 1980, 1984, 1999 ਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਸਵਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਤਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਸਵਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਉੱਥੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੋਪੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸਨ। ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 9,11,594 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਹੇ। 2,55,452 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਬਟੋਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਪੰਕਜ ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 67,183 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਏ। ਉਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 22,084 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮਵੀਰ ਪਾਡਾ ਇਨੈਲੋ ਤੋਂ 15,797 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और उसको लेकर तैयारी हर उम्मीदवार आने वाले समय में करता हुआ नजर आएगा। करनाल लोकसभा से सांसद हैं संजय भाटिया, जिन्होंने 6,56,000 वोटों के आसपास जीत दर्ज की थी, कुलदीप शर्मा को मात दी थी। क्या इस बार भी तैयारी वैसी ही है जैसी पिछली बार थी? पहले भी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और आज भी कार्यकर्ता आप देख सकते हैं, अभी वहीं थे आप पन्ना प्रमुख सम्मेलन में, वहाँ का जोश और उत्साह देखते ही बनता था जोश। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में इतना ताकतवर देशों में लिखाया और सम्मान जो है हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में बढ़ा है, तो मोदी जी का करिश्मा है। पूरे होने वाले हैं ऐसे 5 काम जो सांसद संजय भाटिया ने अपने दम पर किए हों, प्रधानमंत्री से कहकर करवाए हों या बाकी और मंत्री जो केंद्र के हैं उनको कहा हो। दम तो देखिए कलेक्टिव होता है, मैं कोई इस बात का श्रेय नहीं लेना चाहता। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे अपने विधानसभा जो हमारी करनाल की है वहाँ के विधायक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी का भी उसमें बड़ा योगदान रहता है और मुख्यमंत्री जी का नाम ज़्यादा बड़ा है उस नाते से, तो इसलिए मैं कोई व्यक्तिगत श्रेय नहीं लेना चाहता। लेकिन आपके सामने नेशनल हाईवेज का काम जितना हुआ है, यहाँ मेट्रो का काम जो कुछ हुआ है और अभी यमुना वे जो नई रेल लाइन का हुआ है, तो ऐसे सैकड़ों काम है। अब तो 5 कह रहे हैं, ज़्यादा काम है हरियाणा के नज़रिए से भी और करनाल लोकसभा के नज़रिए से। आने वाले समय में अगर आपको फिर से टिकट मिलती है, आप फिर से सांसद बनते हैं, ऐसे कौन से काम जहन में है जो आप करवाना चाहेंगे? मैं एक जो मेरे मन में है सोच है, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हरियाणा आज पूरे राज्यों को, देश के पूरे राज्यों, प्रतिस्पर्धा रहती है, हर तरह की रहती है, चाहे बीजेपी शासित प्रदेश भी हैं, कई मामलों में हरियाणा ने पछाड़ा है और मैं समझता हूं कि हरियाणा उसको मेंटेन करे। और कई उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के दिए, जैसे ये लाल डोरे की ज़मीनें थी उसके पक्की रजिस्ट्री की करी और ये सारे काम किए, स्वामित्व दिया। इस तरह के अनेक काम है जो हरियाणा ने किए। हरियाणा अगर नहीं है आज ऑनलाइन के माध्यम से ऐसी कई सुविधाएं हैं, जब हम दफ्तरों में धक्के खाते थे, फाइल देते थे, पैसे साथ में देते थे, दलाल घूमते थे, दलाल ढूंढते थे, आज आप ऑनलाइन घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराएं। इस तरह की लगभग 200-250 व्यवस्थाएं जो आप ऑनलाइन केवल एक क्लिक के माध्यम से उनका फ़ायदा ले सकते हैं। और आयुष्मान भारत के माध्यम से जिस तरह से मोदी जी ने योजना लॉन्च की और मुख्यमंत्री ने उसको चिरायु हरियाणा किया, 3 लाख तक की इनकम वाले लोग, इसमें ठीक है थोड़ी दिक्कत आती है कुछ लोगों को, कभी फैमिली आईडी की बात करते हैं। देखो हम ही लोग थे जो चर्चा करते थे कि यार ये जिनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ वो बेनिफिट ले रहे हैं, गरीब आदमी को मिलती नहीं। लेकिन उस तरह का एक बड़ा इंडिपेंडेंट और बड़ा निष्पक्ष सर्वे करा के हर लोग तक भेजने का फ़ायदा किया, हर समाज तक ये बात पहुंचे और हर समाज में अवेयरनेस हो, गलत बेनिफिट कोई ना ले, सही आदमी छूटना नहीं चाहिए जो नीडी है। 2024 में टिकट मिलेगी संजय भाटिया को, उम्मीद है? नहीं, ऐसी कोई मैं ना उम्मीद पहले कभी जीवन के अंदर रखी, ना मैंने कभी पहले मांगी, ना कहने गया और ना मैं आगे कभी इस तरह के अपने भाव बदलूंगा नहीं, क्योंकि इसी भाव के कारण ही मेरे को पार्टी ने आगे बढ़ाया, तो मैं अपने वो भाव नहीं छोड़ूंगा। कोई भी लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, कमल का फूल लड़ेगा, नाम तो फिल इन द ब्लैंक्स है, नामों को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता। व्यक्तिवादी पार्टी है नहीं, कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां तो एक परिवार के नाम से लोग वोट मांगते हैं, करते हैं, यहाँ तो कार्यकर्ता ही फील्ड में उतरता है। जिस उम्मीद के साथ जनता ने इनको जिताया था उस पर ये खरा नहीं उतरे। आज जो इन्होंने गांव में जो जाना था जीतने के बाद, वो पूरे गांव भी कवर नहीं किए और जिन जो वादे किए थे भाई सबका साथ, सबका विकास, बहुत ही महंगाई की मार, लेकिन अब की बार आप सिलेंडर देखो जी, सिलेंडर 400 2014 में ये 400 रुपये का था, आज 1100 का। इसी तरह से आप पेट्रोल,
का जो 56 रुपये 2014 में था, आज वो 100 पार कर गया। डीजल, रसोई गैस, दालें, यानी कि रसोई का जो बजट था वो भी कई गुना यानी कि 65 गुना बढ़ चुका है। कोई काम पूरा नहीं किया धरातल पे, इन्होंने कोई काम नहीं किया संजय भाटिया जी ने। और अगर ये धरातल पे काम करते तो आज ये हाल नहीं होता। ये रोड के ऊपर बैठे हुए हैं जितने भी कर्मचारी है, छात्र है, मजदूर है, किसान है, बुरा हाल इस देश का है। यहाँ इन्होंने काम किया है पूंजीपतियों का। कोई भी खरे काम पर नहीं उतरे, लेडीज सारी प्रदर्शन करे, सड़कों पर बैठी। क्या इनका बहू बेटी नहीं है? इन्होंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया बहू बेटिया की सुन ले। क्या इनका बालक बच्चा नहीं, इन्हें रसोई का खर्चा नहीं चल रहा, नासा वर्करों का 4000 में ये अपना घर का गुजारा कर सकेंगे। इस संजय भाटिया ने कम से कम सिलेंडर सारा सौदा बढ़ा दिया। क्या ऐसा संजय भाटिया ने काम यह किया? भी झूठे वादे करे, आज तक कोई भी काम ऐसा नहीं करे जो खरे उतरे अपनी उस पर। मर्द को अंडी दौड़ लाने का हम भंडारी के हैं, उन्हें तो कुछ नहीं करे। आया कहते दीक्षा भी कौन दीक्षा तो बताओ, कोई गांव में भी नहीं आया आपके? कितने नहीं आंदा, मन पानी पत्ता लोट रहा है। ये नेता लोग जो भी हैं वोट के टाइम तो हाथ जोड़ जोड़ के आएंगे, तब कोई जनता हम उनको बुलाने तो नहीं जाती। अपने वायदों पर खरे नहीं उतरे पार्टी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संजय भाटिया जी कोई अपनी बात पर खरे नहीं उतरे, उन्होंने एक भी काम पूरा नहीं किया पानीपत में। देखिए, हमने यहाँ पे जो गहराई से अगर हम बात करें तो मुझे शायद लगता है कि सांसद संजय भाटिया जी पूरी तरह से काम नहीं कर पाए, जनता के बीच में ज़्यादा नहीं रह पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका केंद्रीय नेतृत्व में अच्छी पकड़ है तो ड्यूटियाँ उनकी बाहर लगती रही। जनता से दूर रहे हैं, जनता में ज़्यादा नहीं रहे। और विधायकों ने अगर कहें तो कुछ संतोषजनक कार्य किए हैं, लेकिन सांसद कहीं नजर नहीं आए जी। अगर सांसद करनाल की बात करें संजय भाटिया की, तो शायद हमें तो ऐसा महसूस किया है इस 4-4.5 साल में कि पानीपत जिला तो शायद सांसद विहीन ही दिखाई दिया। कई बार सुनते हैं कि करनाल, मुख्यमंत्री के साथ तो कई बार सुनने में आया कि करनाल देखे गए हैं, पर लेकिन जहाँ तक पानीपत की बात है तो सांसद के वायदे तो दूर, सांसद का भी नहीं पता है कि भी लोगों से मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। उसकी वोट संजय भाटिया को जानता नहीं। आप खड़ा करते हो अगर उसको पहचान ले तो। आपको लगता है कि पिछले 5 साल में करनाल लोकसभा में कुछ काम हुए हैं? हाँ, कई कॉलोनियाँ कटी हैं, कई नए मॉल खरीदे गए हैं, कई प्रॉपर्टीज के सौदे हुए हैं, युवा का धन बढ़ा है। विकास के काम, जनता के विकास के काम, माननीय सांसद का बहुत बड़ा विकास हुआ है, बहुत विकास हो रहा है। बता दिया मैंने, काफी चर्चा है शहर में लोगों से पूछे ना क्या चर्चा है, दाना पानी में क्या हो रहा है। ये कॉलोनियाँ कटी हैं, ये मिलजुल के जो काम हो रहा है किसके आशीर्वाद से हो रहा है, सबको पता है, पब्लिक है, सब जानती है। पार्टी तो आप पर पूरा भरोसा करती है, कभी जम्मू कश्मीर भेज देती है, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, अलग अलग राज्यों में, लेकिन उससे कई बार कार्यकर्ता जो आपके लोकसभा क्षेत्र के वो नाराज हो जाता है कि सांसद साहब यहाँ नहीं आ रहे। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, कार्यकर्ता तो नाराज नहीं होता, जो दुखी हैं, जिनको बुराई करनी है वो थोड़ा बहुत, कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं, कार्यकर्ता इस बात को समझता है। मैं भी कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता का पार्टी जो भी दायित्व देती है वो धर्म भी बनता है। पार्टी के कारण ही हमारी ग्रूमिंग हुई, हम आगे बढ़े। आज पार्टी की अपेक्षा जो भी है उसको भी पूरा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे मैं सभी मेरे सांसद मित्र हैं, अभी के भी और जो पहले भी रहे हैं, मेरे को सबकी जानकारी है। कितना समय, मैं तो कोई एक दिन भी दिल्ली में नहीं रुका। मेरा अगर पूरा कार्यकाल के, अगर आप 365 दिन का 1 साल के होते हैं, अगर मेरी फेसबुक की डिटेल देखेंगे, मैं अपने क्षेत्र में ही रहा हूँ। 5 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे 5 काम जो सांसद संजय भाटिया ने अपने दम पर किए हों, प्रधानमंत्री से कहकर करवाए हों या बाकी और मंत्री जो केंद्र के हैं उनको कहा हो। दम तो देखिए कलेक्टिव होता है, मैं कोई इस बात का श्रेय नहीं लेना चाहता। कुलदीप शर्मा पिछली बार थे, इस बार क्या पता उनके बेटे सामने आ जाएं, क्या पता वो खुद सामने आ जाएं या कोई और उम्मीदवार हो। आपको लगता है कि टक्कर होगी, क्योंकि पिछली बार तो एक तरफा मुकाबला हो गया? देखिए, वो परिवारों की पार्टियां हैं, उनके पिताजी थे पंडित चिरंजी लाल जी, वो आगे पंडित कुलदीप शर्मा जी आए, आगे उनके परिवार का कौन आता है, वो परिवारवादी और परिवार में बैठ के फैसला करेंगे। हमारा फैसला तो कार्यकर्ता करते हैं, किसको लड़ना चाहिए किसको नहीं लड़ना चाहिए, और पार्टी हाईकमान करती है। वो उनके घर का फैसला, उनके परिवार में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे कौन चुनाव लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।